to all of you. To all the dignitaries, esteemed speakers, our participants, and guests who have joined us today to commemorate the Himalayan Day 2025. So, on behalf of EIACP FRI, EIACP Hub Pollution Control Board, and Uttarakhand Biodiversity Board, I welcome you all once again. So, as you all know, that this year theme is Himalaya and disasters, which is extremely relevant as the Himalaya, often called as water tower of Asia and lifeline of millions, are increasingly vulnerable to climate change, natural hazards, and human-induced pressures. So it is now vital to understand these challenges and work collectively toward sustainable solutions. So today's program is being jointly organized, as I have told you before, EICP Resource Partner on Forestry and Forest Related Livelihood FRI, EICP Hub, Uttarakhand Pollution Control Board, in collaboration with Uttarakhand Biodiversity Board and Doon University. So we are honored to have us distinguished experts who will enlighten us with their knowledge and perspectives. So please welcome Dr. S. Suthar sir, Professor and Dean, School of Environment and Natural Resources, Doon University. Sir will speak on hydroplastic pollution in Himalayan rivers. Next speakers with us, Dr. Rakesh Bhutiani. He's Associate Professor in Department of Zoology and Environment Science, Gurukul Kangdi, deemed to be University Haridwar, with his insights on Himalayan disasters. He will talk about this. Next speaker is Dr. Anup Badoni. Sir is Senior Scientist and Director Plantica, and he will share his expertise on natural farming, solution for changes in soil biodiversity due to the climate change. And our fourth speaker, Dr. Rajkumar Chaturvedi, is Environmental Engineer in Uttarakhand Pollution Control Board, and who will highlight the importance of conservation of Himalaya and role of nature. So, on behalf of all the organizers, once again I extend heartfelt gratitude to our esteemed speakers for sparing their valuable time, and to all the participants for being a part of this important initiative. So, let us join hands to strengthen awareness, encourage research, and promote sustainable practices for the protection of our Himalayas. So, the pride protector of our environment. Thank you once again. So, let's begin with, please welcome Dr. S. Suthar, sir. Uh, Sir, you can please Yes. present. Thank you very much for your introduction, and thanks to all organizers for inviting me on this very important day, because we are living in Himalayan state. And after 2013 Kedarnath disaster, uh, this event from 2014 planned as a Himalayan day, just to uh, you know recall what happened in 2013 during the Kedarnath disaster. So just not to repeat all this, what done, we have done in last many years in the Himalaya. So it is just to sensitize people. Rightly said, nowadays you have seen in media, in print and electronic media and worldwide, the disaster in terms of the flood disaster or landslide, they are very common in other parts of the world, but Himalayan Uttarakhand is not exempted. And apart from this natural disaster, some of the hidden disasters may appear in coming years. That is chemical contamination. Because why Uttarakhand is more sensitive, or Himalaya is more sensitive, because it is the place where a major watershed originates, and it feeds 75% of population in this country, making Indo-Gangetic plain. So my talk will be on how the microplastic, that is one of the emerging areas of concern and research as well as,
And the second is the chemical contamination, particularly the pharmaceutical compounds. So I will start with the pharmaceutical contamination. You know, all, like wherever there is a human, it's very common. Like we use lot of medicines for the personal care, that we call personal care products like toothpaste, shampoo, soap, and even we also use plenty of medicines in the form of antibiotics, analgesic, antipyretic, and neurodrugs, even caffeine, that is very common we use. So what happen in our body with all these compounds? So it's obvious, like 40, 50%, sometimes 60% of such chemicals, they are consumed by our system or uptaken. In science language, we say it is uptaken by our body, and rest of compound in parental form or metabolite form, they are released in the environment through fecal system or through urine system. Means sewage or grey water or black water basically is the final disposal of such system, such compounds. So what happened when such chemicals they are released in the environment? So ultimately, through sewage treatment system, it reach back to environment, because most of the treatment system in India, they are not designed to remove all these emerging pollutants. They are designed to remove organic load, particularly BOD, COD, and some conventional pollutants. And yes, it is not removed from water. It remains in water for many days, and ultimately it caused a very intense, you can say very toxic impact in the terms like, if there are microbes in the environment and you have presence of such chemicals, so all these microbes, they have started developing the resistance. So antibiotic resistance, drug resistance is the very common phenomena. Second is, although these compounds they are in a micro amount, I would like to share my slides if you permit. Yes, my PPT visible? No, sir, I just share. it is not. Sir, we can only see a blank page. Let me. Okay. It's gone. Is it now? Fine. Okay.
It's not moving. Why? Leave it. I will speak without PPT. Uh, so we investigated, like we have taken some of the areas of Uttarakhand as a case study to evaluate what is the overall situation in Uttarakhand. So we selected the river Ganges as a major study site. For microplastic, we are working from the origin of river Ganges, not only, but we are also working even at glaciers, where from other major riverine system originates in India, and we are collecting glacier samples, ice melt water samples, main river stretch, uh, water samples, then the sediment samples from different part of Uttarakhand, particularly Yamuna belt and this river Ganges. And we analyze like what is the concentration of these pharmaceuticals. So we identified 16 chemicals, particularly most of these you see the caffeine and amoxicillin, azithromycin, and like brufen, caffeine, and triclosan. These are the very common chemicals which we have seen. And surprisingly, when the river passed through the urban areas like Haridwar, Rishikesh, and it start from like Devprayag, so it will some of the forest, you know, areas there, some of the areas with low human population and least beach activities or human settlement. So, in that condition, you see the increasing trend of uh, microplastic or even pharmaceuticals in this stretch. And we also model like how the microplastic and even pharmaceutical concentration is affecting. It is now okay. So your slides are not moving. My student is working on it. Actually, there is some technical issue because it's in PDF format. It's not in. Fine, it's okay. आशीष रहने दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए. Okay, so triclosan you see that is we found in highest amount, and what is the use of triclosan? Triclosan basically is a very commonly used antimicrobial, antifungal substances, and that is very commonly available compound in all personal care products like the toothpaste you are using, the shampoo, and like all skin ointments you are using. It's basically used as a common chemical to create the antimicrobial, antifungal properties, and it's very hard to degrade. And once it is in environment, and it remains for many days, and now you people thinks like okay, so what is the concentration available in the environment? And surprisingly, most of these chemicals they are not in milligram per liter. They are trace chemicals. They are available in nanogram or microgram per liter. So even in the small amount, such chemical remains in the environment, particularly in the water environment, and that creates not only resistance in the organism, and most important is these chemicals they are persistent in nature. They are classified. Some of these chemical persistent organic pollutant means if any chemical that the life cycle of such chemical is more than
60 days. Okay, so we calculate like harmfulness of any chemical based on its half-life cycle, and any chemical remains to its original strength up to 60 days, that we call persistent chemical, and that duration is enough to accumulate that chemical, or that duration allow to accumulate such chemicals in other organism, non-target organism. So we model like how uh, these chemicals, once they are in water, they are being accumulated by producers like planktonic species, and planktonic species, they are taken by other higher organisms, then higher organism, the fish species. So it is basically entering into the food chain of aquatic system, and we analyze like how these chemicals, they are future threats to aquatic life in river Ganges. And degradation, yes, then people say like, what is the solution of these issues? The solution is like, yes, there are certain organisms in the environment, and in our lab we have successfully uh, cultivated some of small angiosperms like duckweed species, Spirodela, Lemna giga. So, because when you see what is the solution of all these environmental issues, I will also talk about the plastic pollution, and we have also developed one. We have found one fungal stain from dump site, which is capable to decompose 30-40% of the polyethylene, PET, and polystyrene. Fine. So solution basically is in the nature. You see the plant species which can grow in polluted water, highly polluted water. It means they have some capacity, or they have developed some mechanism to survive in polluted environment. Obviously, there are chemicals. Means such species, they have capacity not only to grow in polluted water, but they might have certain mechanisms to decompose such chemicals. So we have isolated some of these plant species, and through phytoremediation, if you see, you can visit our website. You can visit our lab where we have this system already developed. We are also working on the constructed wetland systems, where they are capable to remove 70-80% of these compounds, particularly antipyretic, analgesic, and these antimicrobial compounds like triclosan. Okay, so yes, uh, pharmaceutical and personal care product contamination or residues of these pharmaceuticals, they are emerging. We are having data year wise, and it's increasing. And during holy festival, particularly in Rishikesh and Haridwar, when there is a mass bathing, the concentration increases multiple times, 4 times, 6 times, 7 times. And second is, when we work on such issues, the most important is the season. You see, the most of the riverine system in Himalaya, uh, it is fed by glacier meltwater, and rainy runoff during the rainy season, runoff water during the rainy season. So you will see the dilution of these compounds during the rainy season, and during the pre-monsoon, post-monsoon, during the winter season, because we use different kind of medicines during the summer, and during the winter we have different kind of antibiotic, analgesic, antipyretic. So seasonal variation you can see. And most important is when we use wastewater treatment systems, and 60-70% of such compounds, they are accumulated in the form of sludge. And you will surprise, like we also have some studies on how these pharmaceutical compound behave when it reaches to the sewage treatment plant.
And yes, surprisingly, some of the compounds, they increase when they enter into the wastewater treatment plant, because the settling in the form of the sludge again leads to the adding concentration in next lot of the water. So means the STPs, they are also acting as a dumping point of these pharmaceutical compound in the form of the sludge, where decanting is not proper, or sludge disposal system is not proper, or in some cases where they are just putting sludge in dry bed. And you see, as per the NMCG protocol, uh, in the most of the cases, STP sludge is now recommended as a biomanure for farmers, but it's very dangerous. Now I come to the microplastic. So you see in the environment, plastic is now everywhere, and wherever human in mountain area there is a plastic. So in every day we use plastic. Plastic is everywhere, starting from your morning till your sleep time. Toothpaste is also containing microplastic. It is, so what is microplastic? So any plastic particle, if it is less than 1 to 5 mm, that we classify as a microplastic. And so what is the source? So we classify microplastic in two different classes. First class is primary microplastic, and second is secondary microplastic. Primary microplastic is basically the microplastic we create intentionally for industrial purposes, like you see the body scrubbers people use, skin cleaning agents or body scrubbers that also contain microplastic. And toothpaste is also having plastic that we call, and paints, you see the grease, you see the shoe, this brake shoe pad you see. So in industry, the synthesis of microplastic for some industrial products, it's very common. And second is when any plastic particle, it is lying in the open environment, it's available in the open environment through open littering, through poor waste disposal practices. And in mountain area, you see we are not having any landfill system, sanitary landfill. So the small towns, they have created small trenches, waste disposal trenches, where they put all urban waste material, and it is lying openly. So through abrasion, through thermal degradation, through microbial degradation, it breaks into smaller and smaller and smaller particles. So larger particle you put today, gradually it will erode. So when this particle reached up to the 1 mm, it becomes microplastic. And now you see we have several studies, because I'm not able to show you my PPTs. So we have a pilot scale study on microplastic contamination of river Ganges, where we have seen the microplastic size up to less than even 20 micron. It is very common. 30 to 40% of the total microplastic load is even in that particular range. So now what happens if there is a microplastic? And you all aware, there are reports, even the microplastic, even reports from US claim that even human brain cell also contain microplastic, and even microplastic reach to the human body and through food chain system. The milk you are taking, that contain microplastic. The vegetables you are taking, they are also having microplastic through irrigation. It is coming to wastewater, and through wastewater it is coming to vegetables, where we have sewage treatment based agriculture. Even milk is also containing microplastic. Salt you are taking, also having microplastic. Or seafood, the sea is the major sink of plastic. You see 60% of the debris in
the sea is now plastic. So that sea is, food is also having it. So because of its persistence, because it may remains for uh, many years. If you see the half-life cycle of plastic, is very long. And we have PET plastic, polyethylene tetraphthalate. Then we have polyethylene. We have high density polyethylene, HDPE. We have LDPE. We have PVC, polystyrene, like shirt I am wearing also having polyester, and that is also containing microplastic. So microplastic, every household is now releasing microplastic. It doesn't mean like open littering is the only responsible. Washing machine, everybody now use washing machine. So you clean your cloth, you wash your cloth in washing machine. So that mechanical, turbulence during washing of clothes also shades some of the particles, mostly polyester. Okay, so washing machine is again a big source of microplastic addition in the environment, and now it is time to create some awareness alert, like because Uttarakhand is a tourist state, and uh, big revenue we generate from tourism. So we should have some strict policy on plastic use. We should improve our waste disposal system in hilly urban areas, and we have to develop certain mechanism where we can remove such plastic. So we are also working on such aspect, like how the microplastic such can be remediated. So we are using a pyrolysis mechanism, and we are also preparing, some fertilizers from sewage sludge using pyrolysis mechanism, and we are just investigating like at what temperature which kind of plastic polymer degrades. And most important is there is no mechanism right now available to remove this issue. So mostly microbial degradation, there are certain microbial species which are capable to produce certain enzymes which can break down these polymers into other forms, or microbe they can also use plastic as a carbon source. But we have long way ahead, and in our lab we have identified 4 species, and we sent the sample for identification to MIT, this MIC, Microbial Institute Chandigarh. And once we will receive you know the confirmation of fungal stain, then we will further examine how these you have seen like there is a report recently, like from Amazon forest, some of scientists, they found plastic eating fungus. So yes, solutions are there, but to bring all these solution in the form of technology, it will take time, and time will come when we will have certain microbial, enzymes, and using those products, we can easily remove all these issues. So because there is a time limitation, and with all these, I will stop my talk. And yes, apart from natural disaster, the chemical disaster in Himalaya is having, its concern, and in coming time, we can stop natural hazards in some way by managing the resources. But all these chemical contamination you are adding in Uttarakhand, it is not ending here. It is going all through these 5, 6 states, and if you are mixing something in water in Himalaya, means it will affect the people living in all Indo-Gangetic. Thanks for providing the opportunity. And sorry, I could not share my slides, but due to limitation of time, I think it's okay from my side. Okay, thank you so much, sir. It's all right. I'm sure, sir, you have beautifully presented. I'm sure everyone will enrich their knowledge. So moving to the next speaker,
Please welcome Dr. Rakesh Bhutiani, sir. Uh, Yes, please. yes, sir. You can start now, sir. Okay. Thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers to provide me an opportunity to interact with all of you. And before I can start, I would like to congratulate you all about the Himalayan Day, that is today, for which we are here to celebrate the Himalayan Day. I'm just sharing my slide. Sure, sir. Is it visible to all of you? Yes, sir. Sir, it's blank. Yeah, We yeah, cannot. it's Slide. blank. Right. It's blank slide, but is it visible now? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. First of all, I would like all of you to kindly mute your mic, switch on your speaker to full volume, as we are going to do some meditation for a minute, so that you can feel relaxed, and after that we will continue for the lecture. Kindly listen to it. Sorry to interrupt you, sir, but it is not audible. Okay, is volume is not coming? Yeah, sir. It's a muted Okay. video, I guess. Okay, no issue. I can continue it with the new slides on. Okay, sir. So it was just a mind relaxing Om Dhun. We all are getting a load of works and are in a stressed position. That's why I have started this so that you all feel relaxed from your day-to-day life, and you can concentrate on that present lecture. So आज का जो हमारा lecture है, that is on Himalayan disaster, understanding vulnerability, risks and resilience. Is it visible to all of you? Yeah, sir. Slide is visible. Yes, sir. It is visible. Okay, so we can start with the introduction why Himalayas matters. All of us know that the Himalayas, that are often called as the third pole of the earth, they are not only the world's youngest and the highest mountain ranges, but also the lifeline of the million of the people. These Himalayas give birth to our great rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus, which sustains agriculture, culture and civilization across South Asia. These Himalayas can act as a climatic shield, influencing monsoons, regulating weather and protecting the plains from the icy winds. These are the
richest biodiversity areas sacred in spiritual traditions, vital for water, energy, and livelihood. We all know that. But they are also very highly fragile and disaster-prone areas. These Himalayas are. Now come to the next slide, and we can discuss about why Himalayas are the disaster-prone areas. If we see that हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे यंग और फ्रेजाइल माउंटेन रेंज है, इसी वजह से यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर के लिए भी ये बहुत प्रोन एरिया रहता है। इंडिया और यूरेशियन प्लेट, वी ऑल नो दैट इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट्स के बीच में जो चल रहे टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से एक हाई अर्थक्वेक जोन जो है इसको वो बनाता है। स्टीप स्लोप्स हैं, वीक रॉक्स की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स फ्रीक्वेंटली जो है वो लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। मानसून के समय में अगर हम देखें तो हैवी रेनफॉल्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं और फास्ट ग्लेशियर मेल्टिंग्स यहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स, रिसेंटली वी हैव सीन द फ्लैश फ्लड एग्जांपल इन थराली आल्सो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये सब चीजें एक्टिविटीज जो है वहां पर होती हैं। क्लाइमेट चेंज आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दीज डिजास्टर्स, यानी कि अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारे इन सब चीजों को जो है उसने प्रॉब्लम्स को जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। इरेटिक वेदर है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये सब ज्यादा हो रहे हैं। इसमें हम रिसेंटली हम ये सब चीजें देख रहे हैं। और साथ ही डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शंस, हाइड्रो पावर्स, दे ऑल इम्पैक्ट। वी विल डिस्कस इट इन द ऑल दिस इन द लेटरल स्लाइड्स ऑल्सो। तो ये इकोसिस्टम को जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिजास्टर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं इसको। तो इसीलिए भी इसको जो है डिजास्टर प्रोन एरिया ऑलरेडी नेचुरल वे में तो है ही है, इसको जो है हम जो है आर्टिफिशियल जो उसमें है उसमें भी हम इसको डिजास्टर प्रोन करते चले जा रहे हैं। नाउ यू कैन सी दैट पर्टिकुलर स्लाइड, वाटर स्कैरसिटी और फ्लड। अब आप इसमें अगर हम देखें, सी दैट द फर्स्ट स्लाइड, second slide and the third one, there is a water scarcity, and in another slide flood is showing. Both are extreme conditions, both are the example of Himalayan regions. एक तरफ पीने के लिए पानी ही नहीं है और दूसरी तरफ फ्लड है। दोनों देखिए कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं which people of Himalayas are facing. It is clearly shown in these pictures. Now coming to the next slide, what I am saying that two types, we all know that two types of hazards are there, that is natural hazards and the anthropogenic hazards. Natural hazards includes earthquakes, landslides, floods, avalanche and forest fires, etc. While anthropogenic hazards include deforestation, unplanned urbanization, hydropower, mining. These are all anthropogenic hazards that accelerate the rate of disasters in Himalayan region due to our own activities. Now coming to the earthquake, they are formed by collision of Indian and Eurasian plates, as already I have mentioned. Seismic zone 4 and 5, I will discuss it in the later slide also in details. And some of the major events that we have faced in Kangra in 1905, then Bihar and Nepal in 1934, in Kashmir 2005, and in Nepal in 2015. What are the risks of these earthquakes? That causes casualties, that causes infrastructure damage, and it takes a long time for all types of the recovery from these damages, infrastructure damages or anything else. These are the effects or risk of the earthquakes. Second one is the landslides. What are the main causes of the landslides? The main causes are heavy rainfall, deforestation, earthquakes, road cuttings. For landslides in Himalayan regions are examples of Alpine 1998, Kedarnath route, Joshimath subsidence, and human interference also worsens the slope instability, and that also causes the landslides. Now, I want to add one more thing here and let you know, people, because I'm something a spiritual type of pupil. I am trying to correlate all these things with और वेदा। अगर हम देखें तो हमारे जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो इन सब वेदों को अगर हमने में से किसी ने अगर ये सब पढ़ रखा हो
तो each and everything has already been mentioned in these वेदास। अब देखिए सिंपल सा ये श्लोक मैंने जो यहाँ पर एक लिया है, जिसकी वजह से जिसके मदद से मैं एक मैसेज जो है आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। अथर्ववेद का मैसेज है, माता भूमि पुत्र है पृथ्व्या। व्हाट डज इट मीन्स? द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर सन। दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द अथर्ववेद। अगर हमारे को ये नॉलेज हम वहां से उठाते, अर्थ को हम अपनी माँ कहते हैं एंड आई एम हर सन, तो बेटा अपनी माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? All these things, this shlok can be correlated with landslides, earthquakes, mountain fragility, all these things in the Himalayas. And this shlok just reminds us the responsibility to protect the mountain, means to protect our mother earth. Second disaster is floods or flash floods. Triggered by cloudbursts, excessive monsoon rains, or dam breaks, as I already told you that the current incidence is of Tharali region. Before that, 2013 Uttarakhand flood in Kedarnath disaster, in which around 5,000 plus people lost their lives or are missing till date. It also causes loss of infrastructure. It also causes pilgrimage disruptions. It also causes lot of economic damage. Now, see that particular picture. These are the two comparison of two pictures. Those who belongs to that Uttarakhand region. This is a market of Ghansali. This is a Google Earth image of Ghansali market. See that particular image. That in October 2011, only 7 hectare area was built up in that Ghansali market area. And see the image on the right side. That is of November 2021. That 7 hectare built up area grows to 28 hectares. 28 हेक्टेयर, 7 से 28 हेक्टेयर पे पहुंच गया घनसाली मार्केट का एरिया। ये कैसे बढ़ा? या तो ये भिलांगना नदी जो आ रही है, इस पे हमने एनक्रोचमेंट करा, पहाड़ों को काटा, तो दैट changes what we have done anthropogenically causes disaster that makes the Himalayans more prone areas. So we can easily see the comparison with that particular image. Now, another major problem is glacial lake outburst flood, GLOFs. ये कब होते हैं? ये तब होते हैं जब हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने से बने हुए लेक्स का नेचुरल डैम अचानक से टूट जाता है और it releases certain amount of water in the form of a flash flood, जो तबाही मचाता है, like example of Tharali and जोशी ये केदारनाथ आपदा। हिमालयस जो है हमारे, इसमें क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर, जो क्लाइमेट टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको, जिससे कि लेक्स का साइज डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। और जितना बड़ा लेक का साइज इसका बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा रिस्क भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो GLOFs जो हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं, ये सिर्फ विलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जिंदगी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हिमालयन रीजन में अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रॉपर मॉनिटरिंग, sustainable planning, these all things are very, very important. Now, again, if we go to the Ved, Atharvaved, again Atharvaved, it says, Shanno devir bhishta apo bhavantu pitah, sham yorabhi sravantu na. What does it mean? It means, may the divine waters and forces of nature protect us from flow for our welfare. Means, जो ये नेचुरल रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, नेचुरल सिस्टम्स हैं, ये हमें क्या है, ये हमें इनके नेचुरल फोर्सेस से, वाटर्स के फोर्सेस से हमें बचाएं। ये साफ साफ इसमें बताया गया है। एंड दैट fits for Himalayan rivers, glaciers, natural ecosystem balance. All these things fits in that particular shlok also. Third one is the climate change and Himalayan disaster. Himalayas are warming faster than global average. We all know about the global warming conditions as CO2 is increasing the
rise in temperature is increasing, and that helps in the melting of the glacier. The rapid glacial retreat, water scarcity, GLOFs, I have already discussed. It increases the frequency of cloud burst and flash floods also. जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, इट ऑल्सो generates the flash helps to generate the flash floods also. Changing monsoon pattern, हम देखते हैं कितना मानसून के पैटर्न में कितना चेंज हुआ, लैंडस्लाइड्स, फ्लड रिस्क, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं. Now, what are the factors that worsens the disaster? Human factors. Human factors, हमारा क्या रोल है? हमारा रोल यह है अनप्लान्ड हाइड्रो पावर, डैम कंस्ट्रक्शंस, रोड्स एक्सपेंशन विदाउट स्लोप प्रोटेक्शन, डिफॉरेस्टेशन, क्वेरिंग, सॉइल इरोजन, ये सारी रीजंस जो हैं ह्यूमन के एनक्रोचमेंट के, जिसमें हम अनप्लान्ड सिविलाइजेशन अपना करते चले जा रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं, रिवर बेड्स को जो मैंने अभी आपको जो है बिलांगना के पास जो मैंने आपको एरियल इमेज दिखाई थी, वो रिवर बेड्स का जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं या फ्लड प्लेन्स का जो हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, these all are worsening more disasters. Now, if we go to the case study of Kedarnath Abda in 2013, as I have already discussed with you people, that the cause of that was the cloud burst and glacial lake breach, and 5,000 plus deaths were there. Towns got submerged in that particular cloud burst. Pilgrimage was got disrupted. I will show some slides in next slide. So what lessons we learned from that particular Kedarnath Abda? That we have very poor early warnings, that over construction, inadequate preparedness. So we need to prepare for that. Training again we go into the Rig Veda. That is a very common mantra that is related with that all particular disaster that we all heard in our day-to-day life. Om Triambakam Yajamahe Shubandhim Pusti Vardhanam Urva Rukme Vandanan Mrityor Mukshi Mamrita. What does it mean? That we worship the three-eyed Lord Shiva who lives in that particular Himalaya. May he free us from all these types of disasters and untimely death, just as a cucumber is freed from the vine. And these shlok are very relevant for sudden Himalayas disasters like this Kedarnath flood, Chamoli avalanches, all these things. So these Veds gives us the lessons. These Veds gives us the things to get relief from all these things. These are some of the photographs of Kedarnath Abda of the 2013, in which we see the picture of Kedarnath temple. This is the another image. This is the third one image, which is showing body. Now, come to that particular slide. See, this is basically the geological map of Uttarakhand. This map is similar to Himalayan areas of Himachal and Jammu and Srinagar area also. See the topmost part and the bottom part. This is basically the lesser Himalayas. What we can say, these are the lesser Himalayas. The topmost part and the bottommost part. In the topmost part, see this one. यहाँ पर population जो है वो बहुत कम है, तो यहाँ कोई disaster हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, that doesn't impact the people. Lower region में भी same है. बट आप अगर बीच का हिस्सा देखेंगे, अगर आप ये देखें रोज, आपको ये ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही होगी, जहां पर ये एरो है, एक ऊपर और एक ये नीचे. इस दोनों के बीच के जो एरियाज हैं, इन दोनों के बीच के टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. कई टाइप्स की रॉक्स हैं, ऊपर और नीचे ये चीज नहीं है. तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स हैं, इसकी वजह से भी ये काफी एरिया जो है ये हमारा जो है अर्थक्वेक और डिजास्टर प्रोन एरिया जो हो जाता है. फॉल्ट्स, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दीज आर द बेसिकली द फॉल्ट्स. और ये जो प्रोन एरिया है, ये इसका रीजन क्या है? इट इज द इवॉल्विंग स्टेज एंड tectonic activities are very prominent in that particular area. That is similar in Himachal and Jammu and Kashmir. In Ladakh area, there is something different, as different patterns are there.
We cannot, we are not talking about Ladakh area right now. I just want to know you about the Uttarakhand area, and it is almost similar to Himachal and the Jammu and Kashmir area also. Now coming to the next slides of what are the different disaster management strategies that we can apply. So these are the early warning system, as already here. We can use the radar, satellites, or sensors that can warn us. Many technology has already been come into existence that warn us regarding the disasters. We can do GIS mapping of these hazard-prone areas. We can regulate. That is the most important point in the for the Himalayan region, that we can regulate the construction. Means unplanned construction. I will like to use the word unplanned construction and hydro power projects in that particular areas. Reforestation is must to stop landslides, and emergency response training for locals is very necessary in these areas, because if in an emergency response the localites will get emergency response, we can save lives of many peoples. Now coming to the role of local communities, we have to give indigenous knowledge for disaster preparedness to them. Village disaster management committees should be made so that they can help and train peoples time to time. Eco-friendly tourism should be there. That is very important, and sustainable livelihoods should be there. Eco-friendly tourism, I use that term because आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो हम पहाड़ के ऊपर अगर जाते हैं तो अब हम आज के टाइम में क्या है, पिकनिक मनाने के रूप से जाते हैं. We can't go with the spirituality or something else. हम पिकनिक मनाने और जितना भी कचरा है वहां छोड़ के आते हैं, तो that gives after impact, and that results in the disaster. So timely community awareness programs should be conducted so that people get aware, and we can help them during the disaster times. Now, finally, if we conclude the session, the Himalayas, these are the life source, but these are very fragile ecosystem. Disasters will increase along with the climate change, plus reckless development, unplanned development, reckless development, we can say. We should focus on sustainable development and preparedness to avoid such type of disasters. And we have the collective, this point is very important, that we have the collective responsibility to avoid disaster. That means it is not only the job of the government, it is not only the job of the scientists, or it is not only the job of the communities. We have to work together to avoid such types of disasters. And at last, I will thank you all for your presence and attentions. But remember that the Himalayas are not just the mountains. They are the guardians of our rivers, our climate, our culture, and our future. And protecting the fragile Himalaya is not an option. It is our responsibility. Remember that thing. It is not an option. It is our responsibility. So let's us join hands to conserve, protect, and live in harmony with the mountains. Thank you very much. And once again, wish you a very happy Himalayan day. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. You have beautifully presented the presentation. I hope everyone will understand. It's quite insightful. So moving to the next presenter, please welcome Dr. Anup Badoni, sir. Dr. Anup Badoni, sir. Yes, thank you very much. Please, you can start, here. sir. Yeah, sir, you are audible. Okay, thank you. My slides are visible. जी सर. ओके, थैंक यू. सबसे पहले आप सभी को हिमालयन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड इट्स वेरी मच डिफरेंट presentation on Himalayan days
एक्चुअली मैं बीइंग अ एग्रीकल्चरिस्ट, मैं सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजास्टर की बात कर रहे हैं, बट इसका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पे भी आता है और 100% आता है। और ये पूरी तरीके से मैं मानता हूँ कि जो हम हिमालय की बात कर रहे हैं या हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आज आप सभी का जो कंसंट्रेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी है कि क्या इम्पैक्ट एग्रीकल्चर का आ रहा है। एवरीबडी नोज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अभी सर भी डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले और लोगों ने, सभी ने, एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया। वी नो the problems, everybody knows the problems, but we have to find out the solution now. अब टाइम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का या प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने का नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि हमें अब सॉल्यूशन पे काम करना होगा और एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। और बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट, मैं एग्रीकल्चर इसी क्लाइमेट चेंज को, हिमालयन में हो, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो डिजास्टर हो रहा है, उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सभी को मालूम है, बहुत बेसिक चीजें हैं, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। हमारा ध्यान सॉइल बायोडाइवर्सिटी पे भी जाना चाहिए। ओनली प्लांट बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ये डिजास्टर की वजह से या जितना भी जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ प्लांट बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, सॉइल बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब हो रही है। और सॉइल बायोडाइवर्सिटी की ही हम बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपके सामने एक एज अ नेचुरल फार्मिंग, एवरीबॉडी नो, सभी आजकल सुन रहे हैं, बहुत एक टर्म आजकल चल रहा है, बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी प्लांट बायोडाइवर्सिटी और हमारी सॉइल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का एक ही रास्ता हमारे पास बचा है और वो है नेचुरल फार्मिंग। क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी क्रॉप्स की यील्ड भी रिड्यूस हो रही है, हीट वेव्स हैं, है ना। और जो रेनफॉल में जो चेंजेस है उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, हीट स्ट्रेस है, कई तरह के स्ट्रेस जो है वो प्लांट्स को झेलने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है किसी भी क्रॉप की, वो क्योंकि CO2 लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी जो है वो लाइक प्रोटीन, आयरन, जिंक, जो भी जिस प्लांट का जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी है वो भी जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सब तो इम्पैक्ट हैं जो आ रहे हैं। सॉइल डिग्रेडेशन का हम डिजास्टर की बात कर रहे हैं, जितना रेनफॉल हो रहा है, ह्यूज रेनफॉल, और एक मीन्स इसको हम कहेंगे कि एक अलग तरीके का रेनफॉल, इंटेंस रेनफॉल है। और इसकी वजह से जो इरोजन हो रहा है, जो टॉप सॉइल का जो इरोजन है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो बहुत एक सोचने वाली बात है कि हम लोग की सोचने वाली बात क्यों है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर के लोग हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होंगे, तो 1 इंच सॉइल बनने में, 1 इंच सॉइल बनने में 500 से 1000 साल लगते हैं, 500 to 1000 ईयर्स। और ये एक बहुत बड़ा समय है। और जब इस तरह का डिजास्टर होता है, जब इस तरह का इंटेंस रेनफॉल होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल इरोजन जो होता है, उसकी वजह से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी जो है बह जाते हैं और वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए सामने हमारे आता है। सो हमें प्लांट बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ सॉइल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है। और ये 1 दिन या 2 दिन का या है ना कुछ दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। जब हम कंटिन्यूअसली इस पे काम करेंगे, अपनी सॉइल को मेंटेन करेंगे। सॉइल बायोडाइवर्सिटी इज वेरी सिंपल कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर अवेलेबल, जो कि हमारी सॉइल को लाइव रखते हैं, जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, हमने अपने मतलब के लिए और हमने अपने बेनिफिट के लिए नेचर को काफी हार्म पहुंचाया है। हमने सॉइल बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब करी है, हमने माइक्रोब्स को किल किया है, और यही माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग अपनी क्रॉप को मींस कल्टीवेशन के लिए और प्रॉपर एक गुड यील्ड के लिए। तो मैं समझता हूं कि सॉइल डाइवर्सिटी इज मच इक्वल टू प्लांट डाइवर्सिटी, दोनों सेम है। तो हमें दोनों के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए अब जो मैं उसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो उसका सॉल्यूशन जो है, क्योंकि आजकल मैं हिल्स में भी मैं देखता हूं कि हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं फार्मर्स के पास, फार्मर्स भी हमारे पास आते हैं,
तो मैंने वहां पर ये चीज ऑब्जर्व करी कि अब हिल्स, पहले तो हिल्स में लोग फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स को जानते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है, बट अब हिल्स में भी कमर्शियल कल्टीवेशन की वजह से वो लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, वो लोग फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। जो एंशिएंट टाइम से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करते आए हैं, हमारा स्टेट ऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं देखता हूं प्रैक्टिकली हम लोग इनऑर्गेनिक ही यूज कर रहे हैं। हम लोग यूरिया यूज कर रहे हैं, हम लोग पोटाश, डीएपी, एमओपी हम लोग ये यूज कर रहे हैं, हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, फंजिसाइड्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी सॉइल बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट कर रहा है और क्लाइमेट चेंज में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है, और कोई नया सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट एक क्योंकि नेचुरल फार्मिंग बहुत पहले से होती आई है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमें बस इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। थोड़ा इसमें चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। नेचुरल फार्मिंग का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। नेचुरल एग्रो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को वो प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, हमें नेचुरल इंसेक्टिसाइड तैयार करने हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स तैयार करने हैं, और ये ऑर्गेनिक या जो हमारे बायो प्रोडक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। उनसे डिफरेंट ये इसलिए है क्योंकि नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ही प्रिपेयर होंगे। कई लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक और नेचुरल, मेरे साथ कई लोग डिस्कस करते हैं इसमें कि ऑर्गेनिक और नेचुरल में क्या डिफरेंस है, सब एक ही तो है, नेचुरल भी तो ऑर्गेनिक ही है। यस, एक है, उनका इंग्रेडिएंट सेम हो सकता है, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। दोनों को बनाने का तरीका अलग है। नेचुरल इज एज इट इज, जैसा वो है हम उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं, वो जिस फॉर्म में है हम उसकी फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल का मतलब हुआ कि जो नेचुरल प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ही प्रिपेयर हो, कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स, कोई भी पेस्टिसाइड हम उसमें यूज ना करें, कोई प्रोसेस, कोई कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो हम उसको नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नेचुरल से अलग हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल जो है वो लो कॉस्ट पे या फिर लो इनपुट पे काम करता है। ये सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो नेचुरल ऑर्गेनिक में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को शायद सुने भी होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। वी आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर, वी आर वर्किंग ऑन हाउ टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हम लोग इन सब पे बात कर रहे हैं, और हम लोग इसके लिए वी यूज सेवरल टाइप ऑफ ह्यूज फर्टिलाइजर्स, हम लोग सेवरल टाइप के हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, हम लोग पीजीआर यूज कर रहे हैं, बट नेचर जो है वो 98% न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी। प्लांट्स जो हैं वो 98% न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके नेचर से ले लेते हैं। 98% न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी। The remaining 2% nutrients are taken only from soil, and 2% भी जो है वो already available है soil में, and it's free of cost। ये available है soil में, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट हम इसके लिए 2% के लिए, 2% के लिए हम लोग इतनी लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग इतना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, हम लोग इतना केमिकल यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये केवल 2%, 98% तो नेचर ने दे दिया। हम इसको सीधे कंपेयर कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट सिस्टम से। जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है बिल्कुल बैलेंस्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वही हमें अपने एग्रीकल्चर क्रॉप इकोसिस्टम में लाना पड़ेगा। नहीं जाता यूरिया डालने कि उसको नाइट्रोजन देना है, जंगलों में तो कोई नहीं जाता कि डीएपी डालना है, फॉस्फेट देना है, रूट स्टॉक जो आपका रूट है वो स्ट्रांग होगा। जंगलों में तो कोई एमओपी या आपका पोटाश डालने नहीं जाता है, कि है ना, कि लेकिन जंगल हरे भरे रहते हैं, जंगलों का रूट, जो आपके फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनके रूट कितना स्ट्रांग रहते हैं, उनका जो फ्रूट क्वालिटी है, उनकी जो अपीयरेंस है कितनी बढ़िया, क्या स्ट्रेंथ उनमें रहती है। तो वहां पर तो कुछ, इसका मतलब कुछ तो अवेलेबल है नेचर में। हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि हम लोग ये फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, हम लोग केमिकल्स की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट में तो कोई नहीं जाता है, वो कैसे लश ग्रीन है, उनको कहाँ से ये सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। दैट्स मीन कि समथिंग इज अवेलेबल इन द सॉइल। तो वो वही सॉइल बायोडाइवर्सिटी है, वही माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स वहां पर अवेलेबल हैं, वही पूरी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही हमें अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी अप्लाई करना है। और इसके लिए जो मशीन हमें चाहिए, वो मशीन वो एक ऐसी मशीन है जो बहुत सदियों से हमारे पास है, अ नेटिव काउ, एक देसी गाय। बस एक देसी गाय हमारे पास है। वी कैन फार्म अप टू 30 एकड़ विद 1 नेटिव काउ। If we have a 1 native cow, we can farm up to 30 acres.
30 एकड़ की नेचुरल फार्मिंग हम केवल और केवल एक देसी गाय से कर सकते हैं। और देसी गाय की ही हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देसी गाय का जो काऊ डंग और काव यूरिन होता है, उसमें जो आपके 1 ग्राम ऑफ देसी काऊ डंग कंटेन्स 300 to 500 crores of beneficial microbes only in 1 gram। 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। जितनी भी हमारी ब्रीड्स हैं, हॉलिस्टन है, आपका फ्रेशन है या जर्सी है, ये जितनी ब्रीड्स हैं, इनके काऊ डंग्स में या काऊ यूरिन में पैथोजन ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू माइक्रोब्स। तो नेचुरल फार्मिंग के जो हम प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करें, मैं फार्मर्स को या स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि देसी काऊ का ही हम लोग हमें काऊ डंग या काऊ यूरिन यूज करना है। तो देसी गाय हमारे पास है तो हम 30 एकड़ तक की फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। द अनदर थिंग इज टेक्निक ऑफ मल्टी क्रॉप कल्टीवेशन फॉर हायर नेट इनकम। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में हमें जाना पड़ेगा। जो मोनोक्रॉपिंग है कि हम किसी एक क्रॉप को कल्टीवेट करें, उसी पे डिपेंडेंसी हमारी रहे, जो हिल्स में मोस्टली होता है, तो वो डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी पड़ेगी, हमें डाइवर्स होना पड़ेगा। वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। हमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में जाना पड़ेगा, एक से ज्यादा फसल हमें एक ही जगह पे लगानी पड़ेगी, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम हमें करना पड़ेगा, तो हमारी जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो हमारा मोस्ट इफेक्टिव क्रॉपिंग सिस्टम है, जिससे कि हमारी सॉइल बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। वो ऐसे कि देयर आर सम लेग्यूमिनेसी क्रॉप एंड देयर आर सम ग्रेमिनी फैमिली क्रॉप। तो दोनों अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं, दोनों अलग अलग फैमिली हैं, और दोनों के रूट जोन में डिफरेंट टाइप के सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अवेलेबल रहते हैं। मैं लेग्यूमिनस की बात करूं, ऑल द सिम्बायोटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर अवेलेबल इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। और अगर मैं ग्रेमिनी पॉएसी फैमिली की बात करूं तो ऑल द जो आपके नॉन सिम्बायोटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, ऑल द नॉन सिम्बायोटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर अवेलेबल इन द क्रॉप्स ऑफ द ग्रेमिनी और पॉएसी फैमिली। ओके, तो इसलिए अगर हम इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, अगर हम लोग लेग्यूमिनेसी क्रॉप और आपकी ग्रेमिनी फैमिली की क्रॉप हैं, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, अगर हम इन दोनों को सिमिल्टेनियसली एक ही टाइम पे दो क्रॉप्स को एक फील्ड में कल्टीवेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दोनों तरीके के बैक्टीरिया। हमें एरिथ्रोबैक्टर भी मिल जाता है, हमें राइजोबियम भी मिल जाता है, हमें सभी तरह के स्यूडोमोनास मिल जाता है, हमें हर तरीके के बैसिलस सिलिकस मिल जाता है, हमें हर तरीके के सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं लेग्यूमिनस और ये ग्रेमिनी फैमिली की, तो हमें दोनों टाइप के बैक्टीरिया अवेलेबल रहते हैं, जो कि हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों तरीके के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, सॉइल में अवेलेबल करवाता है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से तैयार करके हम अपने फील्ड में इनको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लाइक बीजामृत है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बीजामृत एंड जीवामृत। देयर आर सम नेचुरल इंसेक्टिसाइड, देयर आर सम नेचुरल फंजिसाइड। बीजामृत इज फॉर सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें सीड ट्रीटमेंट करना होता है। जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द सॉइल बॉर्न पैथोजेंस और इंसेक्ट्स, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग बीजामृत का यूज करते हैं। बीजामृत बड़ी आसानी से आप, है ना, काऊ डंग और काऊ यूरिन का यूज करके, उसमें लाइम ऐड होता है, हम बीजामृत सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जीवामृत एक नेचुरल फर्टिलाइजर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, जो सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी को एनहांस करता है और सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करता है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स को एनहांस करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स होंगे उतना आपकी सॉइल फर्टाइल रहेगी और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। देयर आर सम नेचुरल इंसेक्टिसाइड, जो कि हम जो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, सकिंग पेस्ट है, स्टेम बोरर है, पॉट बोरर है, एफिड्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम नीम का प्रयोग करते हैं। हम इसमें कई तरह के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक आप ग्रीन चिली यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप टबैको यूज कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे नेचुरल और जो लो कॉस्ट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे हम लोग, बॉटनिकल हमारे रिसोर्सेज हैं, उनसे हम लोग नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड, एक बहुत ही कॉमन और इजीली अवेलेबल फंजिसाइड्स है छाछ। छाछ आपने सुना होगा, खट्टी छाछ जो होती है, पुरानी छाछ, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल 100 लीटर पानी में अगर आप 3 लीटर छाछ मिलाएंगे, पुरानी छाछ,
ठीक है, तो वो हमारा बहुत ही इफेक्टिव फंजीसाइड है और नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है और बहुत से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये कुछ नेचुरल एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और हम लोग जो इसमें क्या हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, की नेचुरल रिसोर्सेज जो हम इसमें यूज करते हैं, दे आर काउ डंक एंड काउ यूरिन। काउ डंक एंड काउ यूरिन में, काउ डंक में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो मैंने ऑलरेडी कहा, और माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो ये सॉइल को के स्ट्रक्चर को भी एनहांस करेगा और उसकी हेल्थ को भी, रूट डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। देयर आर सम बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक नीम। नीम एक नेचुरल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी का होता है, एंटी फंगल है, ठीक है, सॉइल को भी एनहांस करता है। टर्मरिक पाउडर हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और ये एज ए फंजीसाइड यूज है। अगर टर्मरिक की डस्टिंग करेंगे तो वो आपका एंटी फंगल का काम करेगा। गार्लिक हम लोग यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है और पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपका इंग्रेडिएंट है। ग्रीन चिली का हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो आपका बायोस्टिमुलेंट और पेस्ट डिटरमिनेंट का काम करता है। और अगर आप ग्रीन चिली और गार्लिक, इन तीनों को अगर हम एक कंबाइन रेशियो में अगर हम इनको कंबाइन करके स्प्रे करें, ठीक है, तो ये बहुत ही एक, इसके साथ अगर टबैको आप ऐड कर दें, टबैको क्या करता है, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो वो उसको पैरालाइज कर देता है, तो इंसेक्ट क्या है, पैरालाइज हो जाता है। गार्लिक क्या करता है, गार्लिक जो है वो उसके बॉडी टेम्परेचर को एनहांस करता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज होता है, आपको फीवर आता है, वो बहुत ज़्यादा रेज होता है टेम्परेचर, जिससे कि वो वर्क नहीं कर पाता है। ग्रीन चिली उसके फूड पाइप को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देती है, तो वो पैरालाइज हो गया बाय द यूज ऑफ टबैको, वो उसका बॉडी टेम्परेचर एनहांस हो गया और उस पर ग्रीन चिली से उसका फूड पाइप भी डैमेज हो गया, तो किसी काम का नहीं रहा। कहने का मतलब कि ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ये पूरी तरीके से इंसेक्ट को, काउ यूरिन आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की होती है। तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने नेचुरल प्रोडक्ट प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस, पुअर वेजिटरी सपोर्ट है। अभी नेचुरल फार्मिंग पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, लेकिन अभी उतना वेजिटरी सपोर्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड हो रहा है कि फार्मर्स तक वो चीज़ पहुंच पाए, या उस तरह की ट्रेनिंग्स या उस तरह के रिसोर्सेस फार्मर्स को बताए जाएं कि वो किस ढंग से प्रिपेयर कर सकता है। फिर भी अभी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रही हैं। लैक ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फार्मर को कन्वर्ट करना कि आप नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि इसमें ये सभी प्रोडक्ट जो हैं वो हमें खुद प्रिपेयर करने होंगे, ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है, हमें फार्मर को खुद बनाने होंगे और उसके बाद खुद उसकी स्प्रे करनी होगी। तो थोड़ा सा चैलेंज ये है कि हम फार्मर को कैसे डाइवर्ट करें, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ये एक प्रिपेयर्ड, एक बना कोई इसका प्रोसेस, जस्ट एक प्रोसेस है, तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तब अप्लाई करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन है, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना और ऑर्गेनिक से नेचुरल की तरफ लेके आना, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द परंपरागत कृषि विकास योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जो अभी चल रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट इसमें फोकस कर रही है। ये एक केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा, ये कर्नाटका स्टेट की केस स्टडी है, और इसमें नेचुरल फार्मिंग जहां पर की गई वहां पर कुछ फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया गया, और यू कैन सी हियर जो हेल्थ इंडिकेटर है 100% इंक्रीज हेल्थ हुई है, क्योंकि नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है, किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक केमिकल्स का यूज यहाँ पर नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है हेल्थ इंक्रीज होगी। सॉइल कंजर्वेशन 93% इंक्रीज हुआ है। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि आपकी जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हुई है। जो सॉइल हमें 50 साल पहले हमारे पास थी वो आज हमारे पास नहीं है, हमारे पूर्वज उसको कंजर्व करके नहीं रख पाए, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का हमने किया, उसकी वजह से सॉइल जो है वो कंजर्व हम लोग रख नहीं पाए, है ना। तो इसलिए सॉइल कंजर्वेशन भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है बाय द यूज ऑफ नेचुरल फार्मिंग, और बहुत से फैक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, सबसे लास्ट में आप देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नीड फॉर क्रेडिट, ये जो है डिक्रीज हुआ है 90%। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे काम करता है,
तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस भी है, और क्रेडिट का जो फार्मर है, फार्मर को फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए क्रेडिट लेना पड़ता है, तो वो भी क्या है, डिक्रीज हुआ है। द अनदर केस स्टडी ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश की ये स्टडी है। इसमें आपका नेचुरल फार्मिंग की यील्ड आप देख रहे हैं, पैडी, ग्राउंडनट, ब्लैक ग्राम, चिली और मेज में कंपेयर किया गया है। और इसमें आप देखेंगे नॉन ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और ZBNF जो यील्ड है, दोनों कंपेयर की गई हैं। और आप देखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग की जो यील्ड है इट्स मच बेटर देन नॉन ZBNF, और इसी वजह से जो नेट एडिशनल इनकम है वो भी फार्मर की इंक्रीज हुई है। और आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट जहां पर की नेचुरल फार्मिंग को विधानसभा में एक्ट इसका पारित हुआ है, और वहां पर मोर देन 90% जो फार्मर हैं वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो ये केस स्टडी हमें ये प्रूफ करती है कि नेचुरल फार्मिंग से किसी भी तरह का यील्ड में कोई डिक्रीज नहीं आता है, और प्रोडक्शन जो है वो अपग्रेड होती है इवन, और आपकी सॉइल बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। So this is time to call to action, encourage adoption to natural farming practices for a greener future. यही मेरा इस हिमालयन डे पे सभी को संदेश है कि हमें प्लांट बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो सॉइल डाइवर्सिटी है उसकी तरफ भी अपना ध्यान हमें आकर्षित करना चाहिए, और इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हमें एग्रीकल्चर में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. So, moving ahead, please welcome Dr. Rajkumar Chaturvedi, sir. हेलो, नमस्कार। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. तो सर्वप्रथम तो आपको आज हिमालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया था कि हिमालय का महत्व क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको किस तरह बचाया जाए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मदर नेचर को बचाते हुए एक हमें इसका प्रहरी का कार्य करने की जरूरत पड़ेगी अब। क्योंकि जैसे जैसे ये हिमालय केवल नदियों का जन्म स्थान ही नहीं है हमारा, ये जलवायु, संस्कृति और जीवन शैली का एक आधार स्तंभ है। तो बढ़ते प्लास्टिक, जैसा कि बताया, बढ़ते प्लास्टिक कचरा, अंधाधुंध निर्माण, अनियंत्रित पर्यटन, अनियंत्रित खनन, ये हिमालय को क्या कमजोर कर रहे हैं। हिमालय जिसके कारण लैंडस्लाइड, डिजास्टर्स और ये घटनाएं हो रही हैं। और जो भूस्खलन, जल स्रोतों का सूखना और ग्लेशियरों का पिघलना, इसके ये इंडिकेटर्स हैं। तो अब हमें ये स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा कि किस प्रकार हम हिमालय को सुरक्षित करें। तो आपने देखा होगा कि इसके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन भारत सरकार ला रही है, जैसे बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो उत्तराखंड सरकार ने भी इसमें एक बहुत बड़ी पहल की। भारत सरकार ने तो पैन इंडिया ये लास्ट जुलाई में ही लागू किया था, लेकिन उससे पहले ही हमने उत्तराखंड ने 2021 में ही सिंगल बैन यूज प्लास्टिक की नीति लागू कर दी थी। और अभी इसी पर आगे कार्य करते हुए उत्तराखंड सरकार एक DDRS सिस्टम, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए पूरे उत्तराखंड में लागू करने जा रही है। और इसका पहले जो पायलट स्केल पर हमने 4 धामों में इसको लागू किया था, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की संवेदनशीलता को हम किस तरह नियंत्रित करेंगे कि एक तो उस तरह उसके प्लास्टिक को कंट्रोल करें, और जो हमारा इरेगुलेटेड जो टूरिज्म का फ्लक्स है, पिलग्रिमेटिक टूरिज्म हो रहा है, उसको हमको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए इसकी कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी करें। हायर हिमालयन साइट्स हैं, उनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पर कंट्रोल टूरिज्म हो, कंट्रोल कंस्ट्रक्शंस हो, कंट्रोल एक्टिविटीज हो। तो इसके लिए हमें इको सामुदायिक भागीदारी का भी यूज करना पड़ेगा, और जन जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करनी पड़ेंगी, स्थानीय पर्यावरण मित्रों का गठन करना पड़ेगा जो कि इन चीजों पर सारी निगरानी रख सकें। नए नियम और योजना के तहत प्लास्टिक की थैली, बोतलों पर स्थानीय स्तर पर भी प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा।
अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने पड़ेंगे, जिससे भूस्खलन, बाढ़ आदि की पहले से ही सूचना मिल जाए। और इस दिशा में एज ए रेगुलेटरी एजेंसी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कुछ कार्य कर रहा है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज। जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके एक्शन प्लान बना रहे हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए। और जो इस तरह की जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले लोग अगर उसमें चिन्हित होते हैं तो उन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाकर उनको रिस्टोरेशन प्लान लगा के उस क्षेत्र को दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश किए जाते हैं। अभी माइनिंग एरिया में के लिए अभी स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी भी प्रपोज चल रही है, तो उससे फिर पता चलेगा कि माइनिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब इन सभी के लिए हम कैसे करें कि निर्माण कार्यों में हम सतर्कता बढ़ाएं, पानी के स्रोतों की सफाई करें, पारंपरिक खेती और जड़ी बूटियों को बढ़ावा दें, पेड़ लगाएं, दूसरों को प्रेरित करें और एक इको बैरियर के रूप में कार्य करें। और जैसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उत्तराखंड में पॉल्यूशन को कम करने के लिए जितने भी हमारी रिवराइन टाउन है उनमें लगभग 70 STPC गवर्नमेंट ने स्थापना की है, जिसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रति मंथ मॉनिटर करता है कि जिससे अनट्रीटेड इफ्लुएंट हमारे रिवर सिस्टम में न जा पाए। और उसी तरह हमने स्टेट एम्बिएंट प्रोग्राम चला रखा है, जिससे हम हर डिस्ट्रिक्ट का जो एयर क्वालिटी है हम मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे हमारे पास एक बेसलाइन डाटा तैयार हो। अगर उसमें कोई चेंजेज आए, अगर उसमें कोई हमें बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के बारे में कोई ऐसा इंडिकेटर दिखाई दे तो हम उसको उस हिसाब से गवर्नमेंट रिएक्ट कर सके। तो ये हिमालय सिर्फ हमारा आस्था ही नहीं, आवश्यकता है। इसको बचाना हमारा धर्म है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करें। यदि हम आज नहीं चेतेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आइए हिमालय दिवस पर हम संकल्प लें कि प्रदूषण नहीं समाधान बनेंगे और हिमालय को बचाएंगे। धन्यवाद। Okay, thank you, sir. It was quite insightful. So, if anyone has a query Yes, or sir. any question, please ask. I have a query, sir. नमस्ते सर, नमस्ते एवरीवन। मेरा क्वेश्चन हमारे सारे ही स्पीकर से है, कोई भी उसको आंसर कर दे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे मतलब मेरे क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सिविक सेंस एंड हमारा हैबिचुअल चेंजेस, जो हमारा बड़ा ड्रीम या विजन है हिमालयस को बचाना प्लास्टिक से, माइक्रो प्लास्टिक से और ऐसे अनहोनी जो घटनाएं हो रही है उससे, तो क्या इसमें हमारा सिविक सेंस डेवलप करवाना या हमारा अथॉरिटी खुद पर कि हमें हमारा हैबिचुअल चेंजेस करना है ताकि हम इन्हें बचा सकें। क्योंकि टूरिज्म आता है, उत्तराखंड में टूरिज्म आता है, बट उत्तराखंड में भी हम सब भी रहते हैं। तो क्या ये हम अकेले टूरिस्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि वो सिविक सेंस या वो अवेयरनेस या वो अपने अंदर हैबिचुअल चेंजेस लाए, या ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने अंदर इतना चेंजेस लाए कि हम अपने आसपास ये जितना भी वेस्ट है या ये सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर पाए, या हम एक ऐसे गोल या टारगेट सेट करें ईयरली बेसिस पे, जैसे हम न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लेते हैं, तो वैसे ही हम अपने लिए भी एक रेजोल्यूशंस लें कि इस साल हम ट्राई करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम उपयोग में लाए, या जो हमारा ज़ीरो वेस्ट टारगेट होना चाहिए। क्या हम ये सारे चेंजेस अपने अंदर नहीं अडेप्ट करें, या हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हम ऐसा कुछ स्टार्ट ना करें कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जोन हो। प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे हैं, हमारे सीनियर्स यहाँ पे हैं, अगर कोई भी इसमें थोड़ा सा लाइट थ्रो करेगा तो आई थिंक हम जैसे जो यंगस्टर्स है वो हम थोड़ा और मोटिवेट होंगे, और हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें हमें थोड़ा सा गाइडलाइन भी मिलेगी। तो रिया जी, जैसा कि आपने बताया कि इस उत्तराखंड हमारा एक टूरिज्म स्टेट है, तो हमारा एक बेसिक इनकम सोर्स भी है, लिवलीहुड का साधन भी है, तो हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा इसके लिए। और जहाँ तक शुरुआत है, शुरुआत हमेशा अपने घर से की जाती है। किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से की जाती है। जैसे कोई कार्यालय है, ऑफिसेज है, स्कूल में, उस तरह को हमको इसको किसी पर हम एज ए ऑथोरिटी
थोपने में ज़्यादा वक्त लगता है, जबकि उसके डेवलप करने में, कि स्वयं ही हम डेवलप करें कि आज हम अपने घर पे सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम उपयोग करेंगे, जहां तक कोशिश होगा हम नहीं करेंगे। उसी तरह और रही बात उसके लिए टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट हमारे अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनको हमारे रूल्स रेगुलेशन और हमारी जो इम्पोर्टेंस है हमारे एरिया की उतना महत्व नहीं होता है, तो इसलिए उन साथ साथ उनको भी जागरूकता करना जरूरी है। तो जिससे कि ये साथ में कोलिब्रेशन में एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे सभी हमारे स्कूल कॉलेज एक अपने यहाँ नोटिफिकेशन निकालें कि आज से हमारे कैंपस में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, सभी ऑफिस के कार्यालयों में निकले, कोई भी हमारे फंक्शंस हो उसमें एज ए युवा हम लीड लें कि हमारे फंक्शन में साहब सिंगल यूज में जो जो प्रतिबंधित क्रॉकरी वगैरह है वो यूज नहीं होगी, जो भी वेस्ट जनरेट होगा उस वेस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे और जो कंपोस्टेबल है उसको हम बाद कंपोस्ट करके यूज करेंगे, और जो नॉन कंपोस्टेबल है उसको हम जो हमारी MSW प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है उसको थ्रू डिस्पोज करेंगे। तो ये सबका एक सामूहिक वो होगा, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। सर जैसे इको क्लब्स हैं स्कूल्स में, तो क्या हम अपने लेवल पे इन सारी चीज़ों को मोटिवेट और प्रमोट कर सकते हैं? क्या जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, हम अपने एंड से इसमें कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, प्रमोट करें कि सर आप लोग अपने जो आपके इको ग्रुप्स हैं स्कूल्स के, उसमें ये एक्टिविटीज़ को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में इंक्लूड करवाएं? तो मैडम जैसा आपने बताया, इको ग्रुप्स वगैरह बनाए ही इसी पर्पज से थे कि जो स्कूल कॉलेज संस्थाओं में उसमें बच्चों को वो उसके द्वारा सबको जागरूक तो किया जा सके। और इसमें ये पहल तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है कहीं बहुत ही धीमी स्तर से है, कहीं अच्छी स्तर से है, और इसमें अगर कोई सहयोग की जरूरत है तो हमारे लिए तो हमने तो विभाग में एक अलग से ही जन जागरूकता का सेल बना रखी है, जिसमें रचना और निहारिका मैडम इसको लीड करती हैं। अगर आपको कभी भी इनकी हेल्प की जरूरत होगी तो आप हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, हम आपके यहाँ करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सर। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ रिया, काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम लोग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सब इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं, बट ये इनिशिएटिव हमें इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। मीन्स हम लोग ये ना सोचे कि उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की या किसी यूनिवर्सिटी की या किसी इंस्टीट्यूट की ये ड्यूटी है। ये इनिशिएटिव जब तक हम खुद से नहीं लेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, तो आपने देखा होगा जॉली ग्रांट के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, वो सभी वहाँ पर फूड कोर्ट हैं बहुत सारे, वहाँ पर बहुत लोग, वहाँ पर कोई बाहर का आदमी नहीं खा रहा है, हम ही लोग खाते हैं। जो भी वहाँ पर आते जाते हैं हम ही लोग वहाँ पर ये चीज़ें लेते हैं। अब उन्होंने वहाँ पर डस्टबिन रखे, डस्टबिन में वो सभी वहाँ पर बोलते हैं कि वो कहाँ फेंकें, तो आप डस्टबिन में डाल दो। और उसी के मैं थोड़ा सा बैक गया और बैक साइड में मैंने क्या देखा, वो पूरा दिन में तो डस्टबिन भर गया और शाम को वो सारा पीछे जंगल है, पूरा जंगल जो है वो, पूरा जंगल जो है वो उसी वेस्ट से जो हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है इंडिविजुअली वी हैव टू थिंक ऑन इट, कि मैं उसको जहां मैंने खाया मैं उसको ये बोल के आया कि भाई इसको कहाँ डाल, ये पीछे तुमने डाल रखा है। इतना ही बोला जा रहा, तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, किसी को आजकल थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा बोलना भी नहीं, पर यह है कि हम अवेयर कर सकते हैं कि ये गलत है, आप डस्टबिन में कलेक्ट कर रहे हो, ये अच्छा है, पर इसको आप फिर कहीं ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ डंपिंग जोन हो, या जहाँ पर नगर निगम का कोई बक्सा या कुछ भी एजेंट से कुछ रखा है, या कहीं ऐसी जगह पे आप छोड़ के आओ। यहाँ पीछे डाल के फायदा क्या, आपने आगे कलेक्ट किया पीछे डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमें इंडिविजुअली सोच के, और जहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा, राइट? सर आपने जो बात बोली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हम हर वक्त टूरिस्ट या किसी और को नहीं बोल सकते, ये प्रदेश हमारा है, और जब तक कि हम भी कहा, चतुर्वेद हमने कहा कि हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी है। एग्जैक्टली। तो मेरा यही एक मैसेज डिलीवर करने का रीज़न था, क्योंकि हम इतने सारे जगह घूम के आते हैं, हम खुद भी लोकल में जाते हैं। आप अगर यहाँ से सहस्त्रधारा चले जाएं, उसके ऊपर आप चले जाएं, तो उन गाँव में भी बहुत प्लास्टिक है, और वो लोकल्स का ही प्लास्टिक है, पर वहाँ गाड़ियाँ नहीं आती है लेने,
ये कुछ महीनों पहले की बात है, आई थिंक 2-3 महीनों पहले की बात है, जब मैं वहां गई थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में। तो इस वजह से वो मुझे भी थोड़ा लगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें वो पिच करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए वो पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया। वो थैंक यू। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू सर। Okay. Anyone? As discussed earlier, sir, regarding the adverse effects of microplastic on our health, spines and will explain indicating as okay. So one question from Devdutt Mishra, and he's asking, as discussed, I'm reading his question. He's asking, as discussed earlier in this webinar regarding the adverse effects of the plastics on our health, despite our unwillingness, we are inclined to use microplastic on a wide scale, which through toothbrush bristle. Is there any substitute for it in the making of toothbrush bristles? So from our speakers, 4 speakers, anyone? देखिए सब्स्टिट्यूट तो फिर मैं सब्स्टिट्यूट की अगर मैं बात करूं तो फिर से हम लोगों को वही जो मेरी प्रेजेंटेशन जो थी वो नेचुरल फार्मिंग पे ही थी। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो हम लोग पहले भी दातुन यूज करते थे, है ना, कई तरह के पेड़ हैं, ट्रीज है ऐसे, है ना, जिनको हम लोग यूज करते थे। तो अब देखिए प्लास्टिक, तो हम माइक्रो प्लास्टिक की बात करें या प्लास्टिक, तो अब हमारी एक मतलब ऐसा हमारे वो एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि उसे निकालना मतलब आज के डेट में वो हमें बहुत बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मतलब वो एक ऐसा टास्क बन चुका है कि इसके लिए हमें एक तरीके से मतलब इतना पीछे जाना पड़ेगा, इतना बैक में जाना पड़ेगा, वहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं हम? ये सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं, हमें मतलब उसके लिए फिर से हमें रिसर्च वाले R&D वाले सेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, वहां से शुरुआत करके तब हम कमर्शियल लेवल पे आएंगे। वो प्लास्टिक कमर्शियल लेवल पे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको वो हमारी डेली लाइफ में, आप देखो ना घर में क्या चीज नहीं, आप अपनी डेली लाइफ में देखिए कितना, आप ब्रश, कितना अच्छा क्वेश्चन आपने किया, ब्रश के, है ना, ब्रश में हमारे बिल्कुल माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है। तो इसके लिए तो नेचुरल ही एक सॉल्यूशन है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही हमें डेवलप कर, उसी से हम बच सकते हैं, अदरवाइज तो सिंथेटिक तो कहीं ना कहीं हमें हार्म पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो रचना जी, हम वोट ऑफ थैंक्स की और फॉरवर्ड करें, या किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है। इसने चैट बॉक्स में नहीं। Priya wants to ask a query. ओके, या Priya has raised hand. रचना जी, Yes, hi, hello. Should I type? Priya just asked you a query. Unmute and ask. Okay, am I audible? yes, you are audible, please. मेरा क्वेश्चन अनूप सर के लिए है। Who has immense experience in natural farming and organic farming. I just wanted to know, sir, from you कि इंडिया में माइकोराइजल रिलेशनशिप का क्या स्कोप है इंडियन फार्मिंग सिस्टम में? क्या हम फंगल सिस्टम पे डिपेंड कर सकते हैं इंडिया में? डू वी हैव स्कोप? डू वी हैव स्टडीज happening in India which depend on fungal system and root system, the symbiotic relationship? यस, डेफिनेटली। इंडिया ही तो नेचुरल फार्मिंग का एक, हम कहेंगे कि मतलब इंडिया में ही तो शुरुआत हुई है नेचुरल फार्मिंग की। हम लोग पहले से करते हैं नेचुरल फार्मिंग, और ये पूरी तरीके से मीन्स पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, और पूरी तरीके से रिसर्च भी इसमें हुई। अगर मैं आपको देखिए, मैं आपको रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो आपने मुनि पराशर का नाम सुना है? मुनि पराशर का नाम सुना है प्रिया जी आपने? No, sir. But I'll ask Priya later, don't worry. आपने मुनि पराशर का नाम नहीं सुना, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ, आप कृषि पराशर आप पढ़िए, कृषि पराशर, ठीक है? कृषि पराशर संस्कृत में है पूरी किताब, और उसको एक सोसाइटी है एशियन एग्री हिस्टोरिकल सोसाइटी करके, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा पूरा,
वो इसको उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। कृषि पराशर में ये पूरी मतलब मुनि पराशर ने कृषि पराशर लिखी है, और कृषि पराशर में नेचुरल फार्मिंग को पूरी तरीके से वेल रिसर्च्ड माइक्रोब्स के ऊपर पूरा काम हुआ है। इवन किस डायरेक्शन में क्रॉप लगानी है, किस टाइम पे लगानी है, कौन सा माइक्रोब्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से नेचुरल रिसोर्सेस में कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, ये सब कुछ कृषि पराशर में ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा एक बुक और आती है, वो है आपकी वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा आप गूगल में सर्च करिए, दोनों आप कृषि पराशर और वृक्ष आयुर्वेदा, ये दो बुक आप अगर पढ़ लेंगे, बहुत बेसिक बुक्स हैं, इनको आप थोड़ा देखिए एक बार, आपको पूरा रिसर्च समझ में आ जाएगा। ये रिसर्च आज की नहीं है, ये मैं आपको है ना वेदों की बात कर रहा हूँ। ये हम लोग तो रिसर्च तब कर चुके हैं, हमारे ऋषि मुनि है ना, जिस टाइम पे तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और रिटर्न है पूरा, ऐसा भी नहीं है। और एक्चुअली ये सब हमारा जो है, ये वेद जितने भी हैं, ये सब चीजें नालंदा में जल चुके हैं, पर थोड़ा बहुत जो बचा है वो किसी तरीके से कुछ लोगों ने मेहनत करके उसको रिजर्व करके रखा है। तो इसमें बहुत स्कोप है, और ये पूरा ही मतलब इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम तो मैं कहूँ कि पूरा नेचुरल पे ही डिपेंड है, और माइक्रोब्स पे ही डिपेंड है। वो तो हमने खत्म कर दिया ना सारा, हमने ही तो सारा खत्म किया है ना। तो देयर आर सो मेनी स्कोप, आप इस पे बहुत काम कर सकते हैं, बहुत। ओके सर, आपका गाइडेंस का रिक्वायरमेंट होगा, बट थैंक यू सो मच। Okay, thank you, Priya. Thank you. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक पांचाल है। इनका क्वेश्चन है कि जैसे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये वेस्ट कलेक्ट करती हैं, तो उसको इंश्योर कौन कर रहा है कि वो वेस्ट सही से प्रोसेस हो रहा है? क्योंकि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो सेलाकुई और विकास नगर के पास एक इनका वेस्ट प्रोसेसिंग जो प्लांट है म्यूनिसिपैलिटी का, शीशमबाड़ा, इन्होंने मेंशन किया है, और ये बता रहे हैं कि वहाँ लगभग 40 फीट का कचरे का पहाड़ बना हुआ है, और इन्होंने ऑब्जर्व किया है ऐसा कि वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि उसका इंश्योर कौन कर रहा है कि वो वेस्ट सही से प्रोसेस हो रहा है। इनका मेन क्वेरी है। देखिए, एज ए रेगुलेटरी बॉडी ये पीसीबी का कार्य है कि वहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं वो अपना वेस्ट डिस्पोजल कैसे करती हैं। और क्योंकि जो उत्तराखंड में जो देहरादून सबसे बड़ा शहर है, और इसमें लगभग पर डे 500 मेट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है। वो वेस्ट वहाँ पर जाता है, तो उसको जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उसकी डिस्पोजल का अरेंजमेंट और वहाँ प्रोसेसिंग करता है। तो जब ये सूचना मिली थी और इस पर कोर्ट में भी एक केस दायर हुआ था कि वो पहाड़ बढ़ रहा है, तो उसके लिए अब उन्होंने उसकी बायो माइनिंग स्टार्ट कर दी है, और जो पुराने के लिए और जो नया कचरा जनरेट हो रहा है उसके लिए वो बाकायदा प्रोसेस किया जा रहा है, और संभवतः कुछ ही समय में वो कचरे का ढेर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बायो माइनिंग की प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दी है नगर निगम ने। Okay, thank you, sir. So Abhishek ji, I hope you will get your answer. Okay, next question, मौसमी, I think प्रधान से है। It's Maushmi Pradhan. It's Maushmi So she Pradhan. is asking, sir, could you please explain that vermicomposting is under natural fertilizer or organic fertilizer? ओके, नाइस क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक में आता है। वैसे देखिए, नेचुरल में सीधी सी बात है, मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस भी नेचुरल ही होना चाहिए। अगर आप इसमें जो हमारे जो इंडियन आप अर्थवॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरली ही तैयार कर रहे हैं, उसमें आप कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो आप इसको नेचुरल कह सकते हैं। जो रेड वॉर्म्स और जो हमारे है ना मिलते हैं अर्थवॉर्म, अगर आप उसमें एसिनाफेटिडा और तरह की जो आप स्पेसीज आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये आपका ऑर्गेनिक में आएगा। सीधा सा डिफरेंस जो है, ठीक है, सीधा सा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है प्रोसेस पे। देखिए, चीजें वही है, नेचुरल में भी हम नीम जो है वो ऑर्गेनिक में भी यूज कर रहे हैं, नेचुरल में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीम ऑयल आपको मार्केट में भी मिलता है, नीम के जितने भी आपके बायो प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं, बट वो क्या है, वो एक प्रोसेस हुआ, उसका जो अर्क निकला, उससे उसमें क्या है, मशीनरी इन्वॉल्व हुई, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हुई। जहां कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, मशीनरी इन्वॉल्व हो गई, एक सिंथेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया, वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। अब आपने नीम की पत्तियां ली, आपने नीम की पत्तियां तोड़ी,
आपने क्रश किया और उसका पल्प आपने यूज कर दिया, फॉर्म चेंज नहीं हुई, एज इट इज आपने यूज किया, तो वहां पर उसको हम नेचुरल कहेंगे, है दोनों ही नीम। तो यही डिफरेंस है, प्रोसेस और कॉस्ट का डिफरेंस है ऑर्गेनिक और नेचुरल में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस एंड कॉस्ट। थैंक यू सर। अभिषेक पांचाल, अपने लास्ट क्वेश्चन पे एक सेकंड क्वेरी है इनकी। सर ने एक्सप्लेन करा था बायो माइनिंग के बारे में कि जो पहाड़ है उसको बायो माइनिंग के थ्रू कम कराया जा रहा है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा। अब ऐसा है भाई, टाइम लाइन तो उनकी जो प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, वो तो नगर निगम से मालूम करने के बाद कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसमें से आरडीएफ सेपरेट करके और उसको उन्होंने आरडीएफ को बर्निंग के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया है। ओके, थैंक यू सर। सो अभिषेक पांचाल, आप प्लीज़ इसको थोड़ा बायो माइनिंग के बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। और नेक्स्ट देवदत्त मिश्रा जी, ये पूछ रहे हैं, utterly as we know that plastics are non-biodegradable substances, so what if we can excavate a compost pit and use it to dump all the plastic waste into it? How far would this method work? So basically ये dump मतलब प्लास्टिक को कंपोस्ट करने की बात कह रहे हैं। देखो, प्लास्टिक तो कंपोस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत बहुत लंबी है सर। तो इसके लिए अभी जब जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स आया, तो एक तरह का दूसरा बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो स्टार्च से बनाया गया था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो यूज हो रहा है। और आज जो ओरिजिनल प्लास्टिक है जो पेट से और इस दूसरी फॉर्म से आता है, तो इसका तो कंपोस्टेबल संभव ही नहीं है। इसका तो यही संभव है कि मैक्सिमम यूज करो, बार बार रिसाइकिल करो, रीयूज करो, कम उपयोग करो, और लास्ट में उसका एक ही काम होगा सर, उसको वो हाई टेम्परेचर पर बर्न करना। Okay, thank you, sir. I think we have done with our questions. Rachna ji, shall we move toward a vote of thanks? Yes, we can. Okay, so I may now welcome Shri Naresh Goswami sir, coordinator EIECP Hub UKPCV. Welcome sir, and I request sir to please deliver a vote of thanks for today's session. थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो हिमालय दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और जो प्रयास आज आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में काम आएगा। और ये बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हैं, मैं ये समझता हूँ हिमालय एक केवल भौगोलिक सिंबल नहीं है, हमारी संस्कृति का एक संवाहक है। और इससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हवा है, पानी है, इससे ये जो सब नदियाँ निकल रही हैं, ये भौगोलिक सभ्यताओं का ही नहीं, वरन हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का भी एक इससे विकास हुआ है। जितनी भी सभ्यताएं विकास हुई सब इस हिमालय से, नदी से, इससे हुआ है। और आज वो हिमालय संकटग्रस्त है, और उसके लिए चिंता करना, उसके लिए चिंतन करना, उसके लिए मनन करना, ये हमारा सबका उत्तरदायित्व है। और जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो सेल्फ जो आपदाएं हैं वो अलग विषय है, लेकिन कुछ अप्राकृतिक आपदाएं हैं तो हमने क्रिएट करी है, हम उस आपदा के निकट गए हैं। अब आप देखिए, जब कोई बड़ा आदमी हो जाता है, माना कोई हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनके वहाँ उनको पहुँचने में, उनको मिलने में, उनसे बात करने में एक डिसिप्लिन तैयार किया गया है कि नहीं साहब आप बात नहीं कर सकते इनसे, आप इनसे मिल नहीं सकते, आप मिलेंगे तो इस फॉर्म में मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, इतने समय तक मिलेंगे। लेकिन हिमालय इतना विराट स्वरूप जिसने जीवन दिया है, जिसने सदियों से हमें पाला है, पोसा है और संस्कृतियों का सम्मान बनाया, उसके लिए हमारे में कोई अनुशासन नहीं है। हमने कोई अपना अनुशासन नहीं बनाया। हम अगर एवरेस्ट में पहुंचने की हमारी ताकत है, अगर वहाँ हिमालय में हेलीकॉप्टर जा सकता है तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं बनाया कि इन जगहों पर, इन इतने महान जो संभाग हैं उन पर जाने के लिए एक विशेष अनुशासन होना चाहिए, विशेष वो होना चाहिए कि नहीं साहब हर कोई आदमी जाना चाहिए। आज उसी का परिणाम, जो प्राकृतिक आपदाएं हम झेल रहे हैं, ये सब उसी के परिणाम हैं। और आज के जो वक्ता थे, डॉक्टर सुथूर साहब, राकेश भूटानी जी, अनु बडोनी जी, हमारे चतुर्वेदी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हमारे पास आई,
और आशा करता हूँ कि ये चिंतन यहीं नहीं रुकेगा और आगे भी बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बोर्ड की ओर से मैं आप सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much. Okay. Okay, so thanks once again for all the guest speakers, Rachna ji and his team and her team, Ria and her team. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Thanks. Thank you very much. Thank you.